ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਸਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫ਼ਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ MJ ਅਕਬਰ ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। MJ ਅਕਬਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ। MJ ਅਕਬਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 11 ਜਨਵਰੀ 1951 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਆਏ ਸਕੂਲ ਆਫ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਸਟਰਡ ਵੀਕਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ। 1973 ਵਿੱਚ ਆਨ ਲੁੱਕਰ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣੇ। 1976 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਤਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪਤਾਹਿਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉਹ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1982 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੇਆਊਟ ਵਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। 1999 ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। 1991 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ। 1992 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਪਰਤ ਗਏ। 1994 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਏਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਟ ਨਾਂ ਦੇ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਸੰਡੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਾਂ ਦੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਕਾਲਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਲਾਈਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਵੇਲ, ਰਾਇਟ ਆਫਟਰ ਰਾਇਟ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ, ਦਾ ਸੀਜ਼ ਵਿਦਨ, ਦਾ ਸ਼ੇਡ ਆਫ ਸਵੋਰਡਸ, ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਬਲੱਡ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬ ਟਿੰਡਰ ਬਾਕਸ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਪਰਤੇ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आप एक सीनियर पत्रकार हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा अनुभव है। देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, हमारे जो इलेक्शन की राजनीति है ना, इतिहास है, उसमें दो किस्म के इलेक्शन होते हैं। हाँ जी। एक तो इलेक्शन होता है जब हिंदुस्तान इमोशनल इशू के ऊपर अपनी राय यानी कि हिंदुस्तान की भावनाओं के ऊपर जो है अपना वोट प्रकट करता है। ठीक है। और एक होता है जब इकोनॉमिक मुद्दे जो हैं वो सबसे सामने आ जाते हैं। तो ये देखिए, इतिहास की एक बड़ी विचित्र बात है कि जब जब इकोनॉमिक इशू पे हिंदुस्तान वोट दिया है,
तब एक स्थिर सरकार बनी है और पार्लियामेंट में एक मजबूत सरकार बनी है। और जब जब हम भावनाओं के शिकार बन गए हैं तब तक पार्लियामेंट भी फ्रैक्चर किस्म का हो गया है। इस बार बड़ा मेरे मन में जो देख रहा हूँ ना, मुझे बार बार 1971 वाले एक इलेक्शन की याद आती है। उस ज़माने में भी इकोनॉमी ऐसे एक ध्वस्त हो गई थी। कई कारण थे, कारण समान नहीं होते हैं, लेकिन इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी। और मुझे याद है उस वक्त तो हम लोग 1970 में कॉलेज से निकले थे, दूर दूर तक किसी भी नौजवान को नौकरी नजर नहीं आ रही थी। ठीक है। आज बिल्कुल वही स्थिति बन गई है कि दूर दूर तक नौजवान को नौकरी नहीं नजर आ रही है। ठीक है। अब 2004 से लेकर अब 2014 हो गए 10 साल। 10 साल एक ऐसा वीरान उसकी ज़िंदगी में गुजरा है। आप आंकड़े हम समझते हैं जब इकोनॉमिक्स के, तो हम समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि भाई 9.5% हुआ होता था, अब 4.5 हो गया है। उससे भी ज़्यादा एक गंभीर बात है कि ये 10 साल में मैं समझता हूँ कोई 1.5 करोड़ सिर्फ नौकरियां बनी है, ऐसा कुछ है। हाँ जी, ऐसा ही बस ऐसा ही कुछ है। मैं तो हैरान हो गया, इतना तो 1 साल के अंदर चाहिए। ठीक है। तो जो बच्चा 20 साल की उम्र का बच्चा हमारा लड़का हो लड़की हो नौजवान है, देखिए हम और आपके लिए जो 5 साल गुजरते हैं ना, तो हम लोग ज़िंदगी का एक फेज़ मानते हैं, लेकिन जो 20 साल का हो उसके लिए 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उस 5 साल में या तो उसकी ज़िंदगी बनती है या बिगड़ती है। और ये 5 साल 10 साल हो गए हैं। जो बच्चा 20 साल का था आज वो 30 साल का हो गया है, और इस 30 साल में उसको हमने नौकरी नहीं दी है, यानी हमने उसका आत्मविश्वास जो है ख़त्म कर दिया है। आज अगर आप देश के अंदर, देश के रास्ते पे जो आप क्रोध देख रहे हैं, गुस्सा देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। आज जो हर जगह, मैं आसाम में गया हूँ, महाराष्ट्र में गया हूँ, हर जगह गया हूँ, दक्षिण गया हूँ, हर जगह आपको एक ही आवाज़ आती है कि बदलो बदलो बदलाओ। ठीक बात है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर खुदा न खास्ता एक स्थिर सरकार नहीं आई तो ये लफ्ज़ बदलाव की जगह पे बदला हो जाएगा। ठीक बात है। ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो जो गुस्सा आप 1970 में, आपको याद होगा कि उस ज़माने में हम नक्सलाइट का प्रॉब्लम शुरू हो गया था, चारों तरफ एक देश खोलने लगा था, उसकी स्थिति होगी। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत है और जमहूरियत में एक वोल्केनो की तरह जगह मिलती है कि नीचे जो दिल का लावा है ऊपर उठ जाए, तो वो जो है आज उस गुस्से ने, एक आदमी ने उस गुस्से को एक आशा बना दिया है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक। आप सोचते हैं कि ये जो इकोनॉमिक इशू है, इस इशू पर ये इलेक्शन है और इकोनॉमिक्स भी नहीं, और डेवलपमेंट के इशू जी, इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट का मतलब मैं सिर्फ एक लफ्ज़ समझता हूँ, नौकरी। ठीक बात है कि अगर आपने नौकरी नहीं दी तो मैं आंकड़े क्या खाऊंगा। ठीक बात है। ये आंकड़े बढ़ते रहें, आंकड़े घटते रहें, अरे जब तक मेरे घर में नौकरी नहीं आएगी तब तक मैं इस विश्वास किस पे करूंगा। तो ये जो है, अच्छा आखिर आप पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी ने क्यों किया, ये लेजिटिमेट सवाल है। ठीक बात है। ठीक है ना। इसलिए मैं बताता हूं कि पिछले 10 साल में जब यूपीए के सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार, राहुल गांधी की सरकार, ये जो 10 साल में विनाश कर रहे थे देश में, तो इसी 10 साल के अंदर उसी फाइनेंशियल वातावरण में, उसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के माहौल में और उसी ब्यूरोक्रेसी के साथ नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक खुशहाल जगह बना दिया। गुजरात 10 साल पहले वैसा ही था जैसे सारा हिंदुस्तान अभी लग रहा है, सड़कें हों या नौकरियां हों। आपको हैरान हो जाएगी कि पिछले 10 साल के अंदर जो भी नौकरियां बनी हैं, सबसे ज्यादा गुजरात में बनी है। ठीक बात है। अगर वहां से हटा दीजिए तो पता नहीं कहां ये आंकड़े चले जाएं। ठीक है। तो इसने जो आशा इस 10 साल के अंदर जागी है। अच्छा, देश के लोगों को कैसे पता चलता है? हम समझते हैं कि मीडिया से पता चलता है। मीडिया छोटा खेल खेलती है। सबसे ज्यादा लोग जो पता चलता है क्योंकि लोग जब जाते हैं, जब नौकरी करने जाते हैं या घूमने जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि हम जब घर में आते हैं, बिहार में सासाराम में बैठे हैं, अभी भी हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाके जो बत्ती है उसके नीचे हम किताब पढ़ रहे हैं, रात को पढ़ते हैं। और गुजरात में जानते हैं वो एक स्टेट है जहाँ पे जनरेटर नहीं बिकता है क्योंकि 24 घंटे बिजली है। ठीक है। गांव गांव में घर घर में पानी है।
हाँ जी, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जब हिंदुस्तान भर प्यासा है। हाँ जी। तो ये सब जो बातें हैं ये जो है सीधा कहीं मस्तिष्क में जाके लोगों के और वोटर के दिमाग में ऐसा घुस गई हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं, यही आदमी जो है हमारे उम्मीदों को यही पूरा करेगा। और इसीलिए बहुत ही मात्रा में आप हैरान हो जाएंगे 16 मई को जब रिजल्ट निकलेंगे और देखेंगे कि एक सैलाब आ रहा है, ये वेव नहीं है, फ्लड है। ठीक है एमजे अकबर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप बहुत दहाकों से देश की राजनीति को देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस समय कांग्रेस को क्या हो गया? इसकी लीडरशिप जो इतनी आज इस समय कमज़ोर नज़र आती है और इसको नीतियों का भी अभाव है, लीडरशिप का भी अभाव है। ये एक ऐसा जो कांग्रेस की जो आज की सिचुएशन है, ये कैसे बनी है? देखिए, ये सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जवाब बड़ा सरल है। जब भी निज़ाम, जब भी हुक्मरान अपने खातिर करने लगे और देश की खातिर छोड़ दिया ना, तब ये हाल होता है। ये जो हम करप्शन की बात कर रहे हैं, रोज सुर्खियों में, आप अखबार में 10 साल से, कौन ऐसा हफ्ता नहीं होगा जब एक नया स्कैंडल नहीं आया होगा। तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए ना कि जो पैसा गायब होता है ये जाता कहाँ है? तो ये मिनिस्टर्स के पॉकेट में ही जाता है ना। अभी मेरे ख्याल 4 दिन नहीं हुए होंगे, 5 दिन नहीं हुए होंगे, एक बहुत बड़ा हादसा निकला मोइन कुरैशी का। ये कोई एक्सपोर्टर हैं, ये मीट का एक्सपोर्ट है। ब्रिटिश रेवेन्यू ने, इंटेलिजेंस ने हिंदुस्तान की सरकार को कहा कि एक बहुत बड़ा घवाला का घपला हुआ है जो अंग्रेज ने पकड़ा, हम नहीं। और यहां पर जानकारी दी तो आज जो है 4 बहुत बड़े नाम हैं, मंत्री हैं, यानी कि टॉप से टॉप जो लोग हैं उनके सबसे करीबी हैं, ठीक है, वो हैं शामिल इसमें, ठीक है। तो ये जो चारों तरफ चोरी, उसके ऊपर सीनाजोरी, उसके ऊपर गफलत, ठीक है। कोई ऐसा हफ्ता नहीं था भाईजान पिछले 10 साल में जब सरकार का कोई ना कोई ऑफिशियल, मंत्री हो या मॉनिटरिंग से लाने वाला हो, वो ये नहीं ऐलान करता था कि बस 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 अगले हफ्ते जो है कीमतें कम हो जाएंगी। अरे 2 हफ्ते में कीमत कम हो जाएगी। 1 हफ्ता जाता था, 2 हफ्ता जाता था, 3 महीना जाता था, कोई ना कोई बहाना बनता था, ठीक है। और जो है कीमत बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। ये सरकार है या दुश्मन है लोगों की? ये जो आपने बढ़ती हुई कीमतों की बात की है, पूरे देश में ये बहुत हैरानी से इस बात को देखा जाता रहा है कि देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं, मोंटेक सिंह अर्थशास्त्री हैं, तो फिर भी जो आम वस्तुएं हैं उसकी कीमतें बहुत चढ़ती रही है और प्याज 100 रुपये किलो वहाँ पर बिका है इस देश में। तो आप क्या सोचते हैं, ये जो आर्थिकता चला रहे थे, जो आर्थिक नीतियाँ चला रहे थे, ये उसकी देन है? भाई मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी नीति थी इनकी। राजनीति के सिवा और कोई नीति नहीं थी इनकी। बस राजनीति कर रहे थे कि भाई किसी ना किसी तरह हमारी सरकार बची रहे। यानी कभी एक पार्टी, कभी मायावती से समझौता, कभी मुलायम से समझौता, कभी डीएमके से समझौता, कभी इससे समझौता, कभी उससे समझौता। कुर्सी में बैठने के लिए जो करना है वो रोज करते थे। जनता को बचाने के लिए, जनता के दुख दर्द में शामिल होने के लिए इनके पास कहाँ वक्त था? और उनको तो लग रहा था कि हम तो अब 20 साल के लिए आ गए, ठीक बात, हमें कौन हटाएगा। जब ये है ना, ये क्या घमंड जब इतना बढ़ जाता है, तब जो है ये लोग जो है समझते हैं कि बस। और दूसरी बात, बहुत बड़ी बात है, वो ज़माना चला गया कि भाई परदादा के नाम पर आप वोट अभी तक जो है सींच रहे हैं, वो होता नहीं है। ये जेनेटिक डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारे वालिद थे प्राइम मिनिस्टर इसलिए मेरा भी हक है, नहीं। जनता क्या देख रही है? जनता काबिलियत चाह रही है। ठीक है भाई, आप 10 साल आपने किया क्या? 10 साल आप तो 10 साल छुट्टी पे थे। ठीक है। जब दिल्ली में रेप के नाम पर जवान जो है आग से मतलब उबल रहा था, ठीक, आपको याद है ना? हाँ जी। दिल्ली पे
उस वक्त राहुल गांधी कहाँ थे? ठीक है, गायब थे, छुट्टी पे थे। ठीक है, कोई आज तक पूछ नहीं रहा है कि ये 10 साल में कितनी बार छुट्टी गए, ठीक है, कितना इनके सिक्योरिटी पे खर्चा हुआ है, किसकी जहाज पे गए हैं, ठीक है, कोई जवाबदेही नहीं है। अच्छा, अब जो है सब आएगी। ठीक है। एमजे अकबर जी, क्या आप ये नहीं सोचते कि जो देश में जो इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको हम ऐसे भी कहते हैं कि ये कॉरपोरेट मॉडल की नीतियां हैं, इससे भी जो अमीर और गरीब लोगों में वो उसमें जो पड़ा है, जो खाई है, वो बड़ी है, बहुत बड़ी है। और इससे जो महंगाई भी अब वो भी कंट्रोल में नहीं आई। जो मार्केट फोर्सेस को मॉनिटरिंग करना था एक सिस्टम में, वो ये हमारा करप्ट सिस्टम उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाया। तो क्या अगर ये नीतियाँ इन्होंने जो चलाई है वो बुरी तरह से असफल हो गई है, अगर नई सरकार आती है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, तो यही नीतियां अगर रहती है तो क्या देश आगे बढ़ सकता है? देखिए, लीडरशिप नीतियों की नहीं होती है। नीति तो कुछ भी हो, लीडरशिप जो होती है वो नियत और काबिलियत पे चलती है। जब आपकी नियत खराब हो तो कोई नीति आपको बचा नहीं सकती। जब आपके पास काबिलियत नहीं हो तो आपकी कोई नीति क्या करेगी? तो मैं मानता हूं कि आज जो सबसे आवाज जो फिर उठी है उसमें मोदी के, आप सुन लीजिए, रोज वो ये कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूं, मुझे चाय बेचना पड़ा था, मैं जानता हूं गुर्बत का नाम क्या मतलब क्या है, मैं जानता हूं कि जब खाने को नहीं मिलता है तो पेट में कितना दर्द होता है, मैं जानता हूं कि जब सामने कुछ नहीं नजर आता है तो कितना दिल उदास हो जाता है, कितनी घबराहट होती है, मैं जानता हूं माँ की पीड़ा जब अपना खाना जो है नहीं खाती है और बेटे को एक लुकमा दे देती है, बस एक ही लुकमा उसके पास है। और जो लोग जो हैं जिनकी ज़िंदगी में महल, पैदाइशी महल थी और मरण तक महल रहेगा, जो बचपन से ही उनके सोने के चमचा है और चांदी का चमचा है, वो कभी समझ नहीं सकते हैं। वो जैसे कहते हैं कि आप तो गरीबी देखने के लिए टूरिज़्म करना पड़ता है, और वो भी अपना ही, जब जाते हैं किसी गरीब के यहाँ तो अपना सैंडविच लेके जाते हैं कि कहीं गलती से उसका असल में खाना ना खाना पड़े। वो फोटोग्राफर आपके जो आगे जाके देख लिया हो गया तो जल्दी से अपना सैंडविच निकाल लेते हैं, और उसके बाद जैसे मायावती कहती थी होटल में जाके साबुन से अच्छी तरह नहा लेते हैं। ठीक है। तो ये जो है ना कांग्रेस की ये गफलत, और कांग्रेस की भाई चाहे जो भी हो, अरे कांग्रेस में अच्छे लोग भी होंगे, कांग्रेस में मतलब काबिल लोग भी होंगे, उनको क्यों नहीं मिलता है मौका? परिवारवाद कभी कांग्रेस का एक प्लस पॉइंट रहा, अब वो नेगेटिव पॉइंट बन गया है। मुझे तो कभी नहीं लगा कि ये प्लस पॉइंट। तो उनके नाम पर वोटें तो मिलती रही है ना? नहीं, कांग्रेस को उस वक्त वोट मिलती थी जब पॉलिटिकल सिचुएशन जो था उनके फेवर में था। आपको कितनी बार परिवार हार गई है इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सिर्फ 77 में नहीं, और इलेक्शंस में हारी है, परिवार नहीं बचा सकती है। अच्छा अकबर जी, आप पिछले दिनों आप भाजपा में प्रवेश किया है आपने, और देश भर में लोग आपको एक धर्मनिरपेक्ष चिंतक और राइटर और जर्नलिस्ट के रूप में लोग जानते हैं आपको। लोगों के मन में थोड़ी सी हैरानी पैदा हुई है कि एमजे अकबर भाजपा में कैसे शामिल हो गया, इसका राज क्या है? बड़ा इस सवाल का मैंने बहुत ही सरल जवाब है। हम जो है ना एक ट्रैप में पहुंच गए कि कांग्रेस ने भाजपा के बारे में जो जो कहा है वो हमारे दिमाग में घुल गया है। देखिए, 15 अगस्त को मैं गोवा में शायद था, पिछले 15 अगस्त को वो मनमोहन सिंह की स्पीच हो रही थी। मैं समझा कि अब हमारे प्रधानमंत्री की आखिरी स्पीच है प्राइम मिनिस्टर की, तो सुन लें। तो बड़ी कोशिश की, लग भी गया, लेकिन वो बेचारे ऐसा मिन करते हैं तो ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ समझ में आता है। और वो सुबह का वक्त था, फिर भी पता नहीं नींद लगने लगी थी। तो उसके बाद हमारे एक मित्र थे, कहीं कि सुन, मुझे लग रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी की भी आज कोई स्पीच आने वाली है। तो बोले देखा भाई, टेलीविजन देखो। तो वो आ गया, उस स्पीच में देख रहा था, और हम बीच में कहीं लगा, मैं सुन रहा हूँ ये आदमी कह रहा है कि हिंदुस्तान में जो पॉलिटिशियन है
जो पब्लिक से करता है उसका एक ही धर्म होता है और वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या कम्युनल लाइन है कि या सेकुलर लाइन है? ठीक है जी। कोई 3 हफ्ता पहले या 4 हफ्ता पहले उनकी कि वो 14 पॉइंट प्रोग्राम, वो जब आएंगे उनकी सरकार एक 14 पॉइंट प्रोग्राम जो है पहले वो इम्प्लीमेंट करेगी। तो उन्होंने खबर भेजा कि भाई आप इस सेशन के चेयरमैन बनिए, राजनाथ सिंह उसको रिलीज कर रहे थे। तो मैं खुशी खुशी कराऊंगा। किताब का पहला पैराग्राफ जो था, पहला लाइन, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, उन्होंने लिखा है। उसके बाद कहते हैं सेकुलरिज्म है क्या? कहते हैं सेकुलरिज्म इज द इक्वालिटी ऑफ एवरी रिलीजन बिफोर द लॉ। तो मैं कैसे कहूं कि ये सेकुलरिज्म नहीं है? आप क्या इसमें इसको कम्युनल समझेंगे? नहीं। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। अब एक छोटा सा ले लीजिए, क्योंकि ये इंटरव्यू है, कोई लंबा कितना आप चलाएंगे। देखिए, हम जो अभी बात कर रहे हैं ना, तो जब इंटरव्यू देना हो या कोई भाषण देना हो तो हम कुछ ना कुछ सोच के आते हैं, भैया सवाल आएंगे, जवाब तो कम से कम अक्लमंदी का थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो लेकिन एक जब माहौल आ जाता है क्राइसिस का, उस वक्त यहीं पर, और ऐसा क्राइसिस जिसमें जान का खतरा हो जाए, तो उसमें भाईजान आपके भी दिमाग में जो कुछ था गायब हो जाता है और मेरे भी दिमाग में जो कुछ है गायब हो जाएगा। ठीक है। उस वक्त सिर्फ दिल की बात निकलेगी, नब्ज की बात निकलेगी। पटना में, मैं गांधी मैदान में, वैसा ही हालात हो गया। बम बरसने लगे। ठीक है। उसकी रैली में, नरेंद्र मोदी की रैली में लाखों की भीड़ थी। बम का ये इशारा था कि कैसे यहाँ भगदड़ मच जाए, हजारों में लोग मारे जाएं। ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जिंदगी के ऊपर भी वार था। बिल्कुल था ना। उस वक्त जब आदमी दिल से बोलने लगता है, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? सबसे पहले कहा कि आप अमन से घर जाइए, और लाखों लोग हैं अमन से घर गए थे। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने एक बात बोली थी जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। उन्होंने कहा था, और बड़े जोर से कहा था, वो जब यकीन में आ जाते हैं तो उनके गले में एक नई जान आ जाती है। उन्होंने कहा था कि हिंदू को तय करना पड़ेगा कि या वो मुसलमान से लड़े या गरीबी से लड़े, और मुसलमान को तय करना पड़ेगा कि या वो हिंदू से लड़े या गरीबी से लड़े। इससे सेकुलर कोई बात हो सकती है? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे आप बताइए। मैनिफेस्टो देख लीजिए बीजेपी का। उसने क्या कहा है? मैनिफेस्टो में कहा है कि हम माइनॉरिटीज को नौकरी और तालीम देंगे, हम मदरसा जो है उसमें मॉडर्नाइजेशन करेंगे। उनकी भाषण में क्या कहा है उन्होंने? कि हम ऐसा मुसलमान देखना चाहते हैं जिसके एक हाथ में कुरान शरीफ हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। ठीक है। क्या ये सेकुलर नहीं है? ठीक है बात। उन्होंने कहा कि हम उर्दू को प्रमोट करेंगे। उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे मुसलमानों में बहुत वीवर और जो आर्टिजन जिसको हम कहते हैं वैसे लोग हैं, उनके लिए हम स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे। लड़की के लिए हम स्पेशल प्रोग्राम्स बनाएंगे कि लड़कियों का डेवलपमेंट हो। मैं कैसे कहूं कि ये सेकुलर नहीं है? उन्होंने एक तो बात बड़ी अच्छी कही कि वक्फ, जिसमें वक्फ बहुत लोग जानते हैं या नहीं जानते पता नहीं, वक्फ जो होता है जो हमारे एंसेस्टर्स में मुसलमानों के अंदर ये प्रॉपर्टीज दी जाती है कि भाई कौम का भला हो, गरीब का भला हो। इसमें निहायत लूट हो रहा है और सरकार कांग्रेसियों के साथ मिलकर लूट हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस लूट को हम बंद करेंगे। ठीक है। आज आपको पता है भाईजान, बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं। इंडिया टुडे का पोल आया है। इंडिया टुडे का पोल कहता है कि 23% मुस्लिम वोट नरेंद्र मोदी को जा रहा है। ठीक है। इससे बड़ा मेरे ख्याल में भाजपा को कभी इतना वोट नहीं मिला होगा मुसलमानों का। ठीक है। कभी नहीं मिला होगा। और मैं कह रहा हूं कि ये जो कहना है कि ये कम्युनल है, ये षड्यंत्र है। जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं रखा है ना कहने के लिए, कुछ नहीं बचा है कहने के लिए, तो यही पुरानी बासी दाल, ये बासी दाल दे दे के मुसलमानों को कब तक बीमार रखोगे? ठीक है। कब तक खौफ की पॉलिटिक्स करोगे? अच्छा अकबर जी, एक बात जो मुझे महसूस होती है कि आपने बताया क्या भाजपा के जो उनका चुनाव घोषणा पत्र है उसमें कैसी सेकुलर बातें हैं, पर इसी के साथ मेरे दिमाग में ये भी सवाल आता है कि देश भर में
543 सीटों के लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। इसमें सिर्फ 6 मुसलमान हैं उनको इन्होंने लोकसभा की टिकट दी है। इससे क्या मुसलमानों में ये बात नहीं जाएगी कि ये हमें राजनीति में पार्टनर नहीं बनाना चाहते? देखिए, कोई भी एक पॉलिटिकल और एक बात और भी मैं करना चाहता हूं। मैं इसका जवाब दे देना चाहता हूं कि ये ना लगे कि मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दिया और इसको मैं गुमराह कर दिया। आपका सवाल साफ था, मेरा जवाब भी साफ है। ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस में जहां कुछ नहीं था, ये मानते नहीं थे, उस प्रोसेस में आज आखिर मैं मुसलमान हूं, फख्र के साथ कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मुसलमान हूं। अब उन्होंने, मैं ज्वाइन किया 48 घंटे के मुझे नेशनल स्पोक्समैन बना दिया। मैं आपके सामने एज पार्टी स्पोक्समैन जो बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो कौन कहता है कि बदलाव नहीं आया? आप फिर मैं कहूँगा कि आप मंदिर की बात बैठाएंगे कि वहाँ पर है मैनिफेस्टो में, लेकिन 370 का है, मंदिर का है, मैं इस पे वो जो साझा सिविल कोड है उसका है। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो मिनोरिटीज है उसमें थोड़ी इनसिक्योरिटी की भावना जाती है। तिनका भर भी नहीं है, क्योंकि आप ये कहते हैं लेकिन पूरी बात जो है कोई नहीं कहता है। उन्होंने खास बार बार कहा है कि मंदिर इलेक्शन इशू नहीं है, यानी कि पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये कल्चरल इशू है। आपको भी पता है कि ये मंदिर का इशू नया कोई आज का नहीं है। ठीक है। ये जवाहरलाल के ज़माने 1948 में मेरे ख्याल ये मंदिर का यहाँ पूजा शुरू हुई थी। ये 150 साल पुरानी ये देश की डिवीजन के पहले का है। तो वहाँ क्या लिखा है कि ये कल्चरल इशू है और सबको मिलकर बातचीत के साथ इसका समाधान करना चाहिए। बड़े अफसोस मुझे की बात है कि पिछले 10 साल में जब कांग्रेस की सरकार को इसके बारे में सबके साथ मिलकर बात करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की? ठीक है, क्यों नहीं की? ठीक है। फिर आर्टिकल 370 आता है, इसमें भी ये कहते हैं भाई आर्टिकल 370 पे कौन ऐसा मुद्दा है जिस पे एक डेमोक्रेसी में विवाद नहीं हो सकता है। कहा है कि देयर शैल बी अ डायलॉग विद एवरी स्टेक होल्डर, यानी कि हम किसी चीज को थोपेंगे नहीं, हम बातचीत करेंगे। तो ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सब मिलके बात करें, शायद वो आपको मना ले, आप उनको मना लीजिए। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये होना चाहिए। इस पे भी सबको मिलके बात करनी चाहिए, कुछ थोपा किसी के ऊपर नहीं जाएगा। और इसलिए मुसलमान भी, जैसे बिहार का उदाहरण देखे, आप देखिएगा इलेक्शन रिजल्ट, वोट देने लगे हैं, बोले कि नहीं हमें अब कोई गुमराह नहीं कर पाएगा, हम नौकरी के लिए वोट देते हैं। क्या आप समझते नहीं कि मुसलमान के भी पेट होता है? नहीं, बिल्कुल, वो तो बात ठीक है। उनको भी एजुकेशन की जरूरत है, उनको तालीम की नौकरी की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। अरे इस पे तो बात करो। वही पुरानी सड़ी हुई बातें आप बार बार इनको गुमराह करने के लिए, इस साल में 365 दिन होते हैं, 364 दिन तो उन्हें लात मार के आप बाहर खदेड़ देते हो, और एक दिन आप जो है उसको खौफ और भय के माया जाल में आप लपेट देते हो और कहते हो कि मुझको वोट दो। ठीक है। अकबर जी, एक मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में सरकार बनती है, जैसे कि माहौल बना हुआ है, तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान है, वहाँ बड़ी क्यूरियोसिटी है कि नई सरकार आ रही है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के साथ जो अदर सर कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जो रिश्ते हैं वो कैसे रहेंगे? आपको ऐसा तो नहीं लगता कोई? मुझे तो कई बार मुझे भी लगता है कि थोड़ा नरेंद्र मोदी जी वो इलेक्शन जो चाहे गुजरात का हो चाहे लोकसभा का हो, वो पाकिस्तान का जरा बहुत उसका नाम उसमें लेते हैं। तो इससे एक संशय पैदा होता है कि क्या कोई, हम तो पंजाब वाले तो बॉर्डर पर बैठे हैं, कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं छिड़ जाएगी? क्यों किससे लड़ाई करें? इसका जवाब नरेंद्र मोदी ने खुद दे दिया है 3-4 दिन पहले। उन्होंने कहा कि हम सब पड़ोसी के साथ शांति से रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हिंदुस्तान ने किसी और मुल्क पे वार किया हो या लड़ाई छेड़ी हो। हम जो है क्यों किसी के साथ जंग की तलाश में रहेंगे?
ठीक है। हाँ, लेकिन जो हमारा हक है, अगर हमारे खिलाफ टेररिज्म होगा तो आपका दिल नहीं धड़केगा, आपका दिमाग नहीं जुनून में जाएगा। हाँ, तो हम जवाबदेही मांगेंगे। हम कोई वीक गवर्नमेंट नहीं है, हम कोई कमज़ोर सरकार नहीं बनाएंगे कि हमके कोई मर्जी आके चांटा मार दे और हम चुपचाप रहें। ये तो ठीक है, आपकी सिक्योरिटी तो मजबूत होनी चाहिए, बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। अगर देश सिक्योर नहीं रहा तो देश के दुश्मन इतने बैठे हुए हैं कि ये तो कोशिश कर रहे हैं कब से कि छिन भिन हो जाए हमारा मुल्क। ये कभी नहीं होने देंगे, देश को हम कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे। अच्छा, एक और भी सवाल मेरे जहन में है कि 2014 में इसी साल वो नाटो की जो फ़ौज है वो अफ़गानिस्तान से जा रही है और वहाँ पर ये जो पॉलिटिकल संभावनाएं जताई जा रही है कि वहाँ पर तालिबान स्टेट पर कब्जा कर लेंगे, मुड़ पावर में आ जाएंगे और उससे पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए कौन सी परिस्थितियाँ पैदा होने जा रही है? एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक थिंकर के तौर पर आप क्या सोचते हैं जो इस सिनेरियो कैसा होगा और उसमें हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान की नई सरकार की क्या भूमिका होगी इसमें? ये बहुत बड़ा सवाल किया है आपने। हाँ जी। और ये बहुत बड़ी एक चैलेंज और समस्या हमारे सामने उठने वाली है। हाँ जी। क्योंकि उस वैक्यूम में जो फोर्सेस, जो मिलिशियाज उस कोशिश करेंगे भरने की, वो सिर्फ अफगानिस्तान के दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ सिविलाइजेशन के दुश्मन नहीं है, वो हमारे भी हैं। और ये भी कह सकता हूँ मैं कि वो चीन के भी हैं। बिल्कुल ठीक है। रूस के भी हैं। तो हमें बहुत ही सोचकर और एहतियात से वहाँ काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, आखिर तो जब नीति बनेगी, पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी जो पड़ोसी देश हैं, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इस इशू पर कोई ज्वाइंट इनकी नीति बन सकती है? देखिए, वो तो जो अगली सरकार बनेगी वो सोच के पहले देखेगी, एग्जामिन करेगी, सोच के फिर एक पॉलिसी बनाएगी, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन अभी जो ज़रूर कहा जा सकता है कि ख़तरा बड़ा है, ख़तरा गंभीर है और देश को इस 2015 ख़ास तौर पे हमें बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा। अपने सरहद को बहुत ही मजबूत रखना पड़ेगा। हमारा सरहद सिर्फ कश्मीर में नहीं है और पंजाब में नहीं है, हमारा सरहद सारा कोस्टल लाइन जो है, जहाँ से बम्बई के ऊपर हमला हुआ था, बिल्कुल है। और आज तो एक बहुत अफसोस के साथ मैं कहता हूँ, क्योंकि ये नेशनल मामला है कि ये 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर जितनी हमारे डिफेंस फोर्सेस कमज़ोर हुए हैं, शायद कभी वो तो बताया जा रहा है कि कुछ हफ्तों का ही असला है उनके पास, फौज के पास। मतलब आप सच्चाई मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये बात एक जगह नहीं हर जगह जा रही है, तो कुछ बातें ना ही कहें तो मैं समझता हूँ देश के लिए अच्छा है। लेकिन कभी कभी मतलब दिल घबरा जाता है और मैं समझता हूँ कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी अगले सरकार की। ठीक, कौन से जो 4-5 इशू हैं जो उनकी प्रायोरिटीज़ जो नई सरकार की होनी चाहिए देश के लिए? देखिए, 5 तो छोड़िए, एक हो प्रायोरिटी हो। हाँ जी। कि इकोनॉमी कैसे एकदम फौरन जितनी जल्दी हो सके हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़े, नौकरियों का एक सिलसिला जो है तेज़ी से आगे बढ़े, कि जो यूथ जिस आशा के साथ वोट दे रही है वो इतनी तेज़ी के साथ उठ रहा है, कभी कभी डर भी लगता है। तो ये जो है बहुत ही जल्दी, एक हाईएस्ट प्रायोरिटी मैं समझता हूँ इसका है। और इकोनॉमी उसी वक्त बढ़ती है जब देश स्थिर होता है, जब देश काम होता है। और ये दोनों मुद्दे जो हैं मैं समझता हूँ सबसे बड़े होंगे। और ये नरेंद्र मोदी भी आपसे और मुझसे ज़्यादा समझते हैं, वो जानते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि नौकरी की एक इकोनॉमी होगी और नौकरी सबको मिलेगी। अकबर जी, एक थोड़ा सवाल रह गया मेरा जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। को देश की राजनीति में जो लेफ़्ट पार्टीज़ हैं, जो जिसको वाम दल हम बोलते हैं, वो बहुत उनकी स्पेस है जो कम हो गई है, वो इररेलेवेंट से होते जा रहे हैं
और इसी समय देश की राजनीति में एक आम आदमी पार्टी ने प्रवेश किया है। एक तो ये बताइए कि कम्युनिस्ट वो इर्रेलेवेंट क्यों होते जा रहे हैं, और क्या जो आम आदमी पार्टी है एक न्यू लेफ्ट के तौर पर देश की राजनीति में उभर सकती है? देखिए, लेफ्ट के साथ जो समस्या है, मैं तो बंगाल में कहीं रहा हूँ, प्रेसिडेंसी कॉलेज में रहा हूँ, तो लेफ्ट के कई रूप देखे हैं हमने। लेफ्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि वो अभी तक लेफ्ट को एक नया मॉडर्न अंदाज नहीं दे पाए हैं। आप वही कहते जाएंगे कि नेशनलाइजेशन जो आइडिया ख़त्म हो गया है, कहीं भी नहीं चल रहा है। न्यू मॉडल उन्होंने पेश नहीं किया, न्यू मॉडल कोई सोचने की हिम्मत भी नहीं की है। ज़माना बदल रहा है, लेकिन वो फंसे हुए हैं वही 1920 में, 1930 में। तो कैसे जनता उन पर यकीन करे? ठीक है, नहीं कर सकती है। जहाँ तक एक नई पार्टी उनकी जगह लेने का मामला है, अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक लेफ्ट फोर्स जो है उसके लिए ज़रूर जगह है, और रहनी भी चाहिए। लेकिन आम आदमी ने पता नहीं कहाँ गुमराह हो गए, ये समझने लगे कि क्योंकि दिल्ली में 28 सीटें मिल गई हैं, तो हम दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तो बड़ी छोटी बात है, हम देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है। जब कोई बहुत बड़ा बच्चा ही होता है जो समझता है कि अभी 2 कदम तो चलना नहीं आया, मैं बेन बोल्ट बन जाऊंगा और 100 यार्ड डैश को मैं 10 सेकंड से कम में कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। देश बहुत बड़ा है, इसके लिए पार्टी को केडर चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। कोई ज्यादा बोझ उठा लिया इन्होंने? बोझ नहीं, दिमाग खराब हो गया है। कुछ लोगों का वक्त लगता है दिमाग खराब होने में, और कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है। ठीक है। और ये जब भगौड़ा बन गए, अरे आप जब मौका मिला है तो आप चलाइए। मैंने कुर्सी में बैठने का मतलब ही होता है चुनौती के सामने पेश होना, कोई आसान काम थोड़ी है। ठीक है। अब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर आसान नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टरशिप कितना मुश्किल होगा। ये तो ठीक। हाँ, तो क्या सरहद पे गोली चढ़ेगी और आप रिजाइन करके भाग जाएंगे? नहीं, ठीक है, ठीक है। वो तो ऐसा लगता है कि उनको पहले जब उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी तो सरकार ही नहीं बनानी चाहिए थी उनको। जी, जब आपके पास पूरे नंबर नहीं है तो दूसरी पार्टियां आपकी राइवल है, उनको हरा कर आप आए हैं, तो सरकार कैसे चलाएंगे? बोले कि मैं फिर से इलेक्शन करवा लें। हाँ जी, वो तो ऐसे ही चाहिए, और वो करते हैं तो इस अभी के इलेक्शन के साथ फिर से असेंबली हो जाता है। अच्छा, आप चुनाव में आप पंजाब के दौरे पर आए हैं, पंजाबियों को इस चुनाव के संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई देखिए, आप नरेंद्र मोदी का एक सैलाब आ रहा है। हाँ जी। उस सैलाब के साथ पंजाब का पूरा हक है तैरना, ठीक है, और आगे बढ़ना। ठीक है। पंजाब के साथ इतनी अच्छी किस्मत की अपॉर्चुनिटी है कि जो चंडीगढ़ और पंजाब में हुकूमत कर रही है, वही अलायंस अब दिल्ली में करने वाली है। तो ये तो दोनों हाथ में लड्डू आने वाले हैं। ठीक है। तो पंजाब के साथ जो भी इकोनॉमिक मतलब बेईमानी की गई है, ये अब मौका है उसको हटाने का। और ख़ास तौर पे अमृतसर की जो जनता है, ठीक है, उसके पास तो मतलब देश के खजाने की तिजोरी जिसके हाथ में आने वाली है, अरुण जेटली, वो कैंडिडेट बन गया है। देखिए, अमृतसर की बड़ी समस्याएं हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, कई समस्याएं, लोग कुछ नाराज भी होंगे उस समस्याओं की वजह से, लेकिन उनको एक शक्तिशाली एमपी चाहिए और एक शक्तिशाली मंत्री चाहिए, ऐसा एमपी जो दिल्ली में हुकूमत करे। ठीक है। और वो दोनों मिलने का मौका है अरुण जेटली के साथ। मैं तो बार बार कहता हूं, यहां पर भी दोहराऊंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाई अच्छे आदमी है, ऐसी क्या बात है, वो इस बार जो है कुछ अमृतसर से लेने आए हैं, देने नहीं आए हैं। ठीक है। क्योंकि ना वो चंडीगढ़ से कुछ दे सकते हैं और ना दिल्ली से दे सकते हैं। ठीक है। दिल्ली में तो कांग्रेस की सरकार का कोई नामो निशान नहीं होने वाला है। ठीक है। तो क्या देंगे? ठीक है। देने के लिए कुछ है ही नहीं उनको। ठीक है। और अरुण जेटली जो है वो लेने नहीं आए हैं, वो देने आए हैं। ठीक है। क्योंकि चंडीगढ़ भी उनके साथ होगी और दिल्ली की कुंजी जो है तो उनके पास होगी। तो ये जो है ऐसा एक डबल वैमी
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका मौका है। मुझे पूरा यकीन है कि अमृतसर की जनता जो है अरुण जेटली को अपना कैंडिडेट और अपना एमपी बना के, अपना मंत्री बना के भेजेगी और अगला दशक जो होगा अमृतसर और पंजाब के लिए एक बड़ा सुनहरा दशक होगा। ठीक है एमजे अकबर जी, आप पंजाब आए और हमारे अजीत वेब टीवी के स्टूडियो में आए, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।